اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کلام سننے والے ہیں، میں خادم الدین سے تو نہیں، کلیسیا سے پوچھتا ہوں کہ رسولوں کے اعمال کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں کی جو زندگی گزاری انہوں نے، جو اعمال انہوں نے کیے، جو عمل انہوں نے کیے، ویری گڈ، جو انہوں نے عمل کیے۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ بہت سارے کلام کو سننے والے ہیں، شاید ان باتوں پر بھی ان کا دھیان نہیں ہے۔ تو ضرور ہے کہ جو بھی کلام کا حصہ پڑھا جائے یا سنا جائے یا سنایا جائے، ہر ایک شخص کو پورے طور پر اس کی گہرائی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا چرچ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، خدا نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اور جو کچھ ہم پر بھید کھولے ہیں، اس میں ہمیں بڑی خوشی کرنی چاہیے۔ اور ان ایام میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سے ایام جا رہے ہیں؟ روزوں کے، لینٹ سیزن جو ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید کلام کو میں یہی سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ بات وہیں پر ہی آئی۔ نجات کا کام جو ہے میرے اور آپ کے یسوع نے کیسے کیا، ان دنوں میں ہم بخوبی جان رہے ہیں۔ اور پوری بائبل کا جو پرپس ہے، جو مقصد ہے، وہ نجات ہی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک، یعنی پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جو ہے، آپ کو نجات کے بارے میں ہی سکھایا جائے۔ تو پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس میں سے یہاں پر ہمیں آغاز نظر آتا ہے کہ جہاں پر خدا کے لوگ جو تھے وہ فزیکلی طور پر دکھ میں تھے، کرب کے اندر تھے، تو خدا نے ہی یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ان کو یہاں سے نجات دلائی جائے۔ ظالم کون تھا؟ فرعون بادشاہ۔ حالانکہ خدا جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا، اور نظام بناتے ہی ایک خرابی ہو گئی۔ میں اور آپ آج ہم بھی اس بات سے تجربہ کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے جب گھر کے لیے پلان کرتا ہے، فیملی کے لیے پلان کرتا ہے، تو کبھی نہیں چاہتا کہ برا ہو، کوئی چاہتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد اگر ہم خادم دین ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہر طرح سے اچھے نظر آئے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں، لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام صداقت سے بھرا ہوا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم سب کمزوری رہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کامل نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو بے گناہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد جو انتظام کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نجات ہے۔ اور نجات کب ملے گی؟ یسوع مسیح نے تو ایک دفعہ ہمیں بتا دیا ہے، لیکن ہمیں نجات ملے گی کب؟ جب ہم اس بدن کو اتاریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو خروج کی کتاب میرے ساتھ آپ نے نکالی ہے، اس میں سے ہم پڑھیں گے جہاں سے خدا نے موسیٰ کو، اپنے بندہ کو آواز دی، آغاز کیا کہ خدا جو ہے وہ ان کو لے کر چلے۔ خروج 3 باب اس کی 7 آیت سے 10 آیت، اگر کسی بیٹی کو، بہن کو ملے یا بھائی کو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ خروج 3 باب اس کی 7 آیت سے پڑھیں گے۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے، آج بھی دیکھ لیں، اگر ہم خدمت کرتے ہیں یا آپ کلیسیا ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم خدا کے گھر میں آنے سے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ خدا اگر میرے میں کمزوری ہے تو اسے دور کر دے۔ جی۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے
خوب देखी है। कहाँ पर है? मिस्र के अंदर। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं अगर अपने अंदर इनर के अंदर जाएं तो वो मिस्र के अंदर ही हैं, मिस्र की हालत के अंदर ही हैं और वो कभी नहीं चाहते कि हम अपने आप को बाहर निकालें। और यहाँ पर खुदा जो है अपने बंदा मूसा से कलाम कर रहा है और उसको खड़ा करके कह रहा है कि मेरी कौम के साथ ये कलाम कर। जी, खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊं। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुँची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। ये थी फिजिकली कंडीशन जो खुदा देख रहा था और लोगों को भी बताना चाहता था कि वहां पर उन पर जुल्म किया जा रहा था, बगैर पैसों से उनसे मेहनत करवाई जा रही थी। तो खुदा जो था वो देख रहा था किसको? अपनी कौम को। खुदा की कौम है कौन है? खुदा की कौम हम हैं। हालेलुया। और खुदा हमसे प्यार करता है, इसीलिए दुनिया के अंदर जब हम मनादी करते हैं या अपने खुदा के बारे में बताते हैं तो उसकी तरह कोई सानी नहीं है। हालेलुया। उसके बराबर कोई नहीं है, क्योंकि उसमें किसी किस्म का गुनाह नहीं पाया जाता। नजात की जरूरत किन को है? नजात की जरूरत हमें है। हमें खुदा के साथ रहने की जरूरत है, इसलिए खुदा जो है वो शुरू से ही हमारे लिए क्या कर रहा है? इंतजाम करता आ रहा है। उस जगह पर हमें लेकर जाना चाहता है जिसका वादा खुदा ने हमारे साथ किया। यहाँ पर मिस्रियों के साथ खुदा ने वादा किया कि कहाँ पर उनको लेकर जाएगा? जहाँ पर दूध और शहद है। और आप जब मुकाशवा की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको आने वाले उस जहान के बारे में यही बातें मिलेंगी। हालेलुया। ये एक फिजिकली तस्वीर है जो यहाँ पर खरूज की किताब के अंदर आपको दिखाई जा रही है। खरूज का एक्चुअल मतलब क्या है? खरूज का मतलब है बाहर निकलना। खुदा ने क्या किया? अपनी कौम को क्या किया? मुल्क मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया। और मेरे साथ निकालते रहिए, छोटे छोटे हवाले हैं। खरूज की किताब के अंदर ही उसका 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर, ये जब इंसान जंग में हो तो वो शिकस्त खा रहा होता है, तो उसके लिए हवाला हम कोट करेंगे। खरूज 15 बाब और उसकी दूसरी आयत। मैंने आपसे कहा बस ये छोटे से हवाले हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे तो टाइम के बारे में भी नहीं बताया गया कि कितना टाइम मैंने लेना है। ओके, मैं तो चाह रहा था किसी बंद कर दूं क्योंकि आवाज काफी बहुत ज्यादा है। जी, अगर किसी ने निकाला है तो पढ़ दीजिए, मेहरबानी। 15 बाब उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। खुदावन मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर भी क्या खुदा का बंदा कह रहा है कि वही निजात दिलाता है। शिकस्त की हालत में वही हमें क्या करता है? फतह याबी अता करता है। और फिर इसके बाद दूसरा सैमुअल उसका 3 बाब और 10वीं आयत। मैं खुद भी कोशिश करता हूं क्योंकि दूसरा सैमुअल उसका 3 बाब और 10वीं आयत यहाँ पर लिखा है, पढ़ दे।
ताकि सल्तनत को साउल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बिरसबा तक कायम करूं। यहाँ पर भी खुदा ने क्या किया है, आपको पता है कि सैमुल बादशाह से खुदा जो था अपनी कौम को निजात दिलाना चाहता था, बचाना चाहता था, और खुदा ने किसे खड़ा किया? दाऊद को। हालेलुया। जब कौम बनी इस्राएल ने कहा कि हमें एक बादशाह चाहिए, तो उन्होंने किसका चुनाव किया? साउल का। लेकिन खुदा ने मना किया कि वो तुम्हारे लिए बादशाह जो है अच्छा नहीं साबित हो। लेकिन खुदा जो है अपनी कौम के साथ साथ रहता है। और फिर खुदा ने क्या किया? एक जोरावर बादशाह, एक जोरावर यानी शाहजोर बंदा जो था वो अपनी कौम को दिया। आगे हम जब जाएंगे तो फिर बात आकर कहां पर खत्म होगी? जिसका नाम हम दुनिया के अंदर जपते हैं, यीशु मसीह का। हालेलुया। ये एक स्केड्यूल बना हुआ है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाइबल कैसे हम तक पहुंची है, किस तरह पहुंचाई गई है, कैसे लिखी गई है, हमें कतई इसके बारे में नहीं पता। जब मैंने इसे स्टडी किया तो पता चला कि 1500 साल में ये बाइबल लिखी गई। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले तुम्हारों पर लिखी होती थी या छोटी छोटी किताबें होती थी। आज हमारे पास ये कंप्लीट खुदा का कलाम है। लेकिन फिर भी क्या है, लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, घरों में पढ़ी है, इसे सुनते नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके पास तो एक ही बस जवाब है, वो कहते हैं जी असी तो पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर उनको ये भी बताना पड़ता है कि आप बताइए कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले शागिर्द थे वो कितने उनमें से पढ़े हुए थे और कितने अनपढ़ थे। तो ये बात है खुदा की बुलाहट का। यहाँ पर हम सब जितने भी आने वाले हैं, बेशक खुदा ने हमें बुलाया हुआ है, लेकिन खास हम में से कौन है ये खुदा जानता है। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। खास जिनको हम प्रोटोकॉल देते हैं। हालेलुया। मेरी बातें आपको समझ लग रही है? हमारा टॉपिक क्या है? निजात का। और मैं आपको निजात ही के बारे में सारी बातें यहाँ पर सिखाने के लिए, खुदा के खादम दीन भी आपको सिखा रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि आप में से हर एक जो सुनने वाला है वो सुनने में तेज हो। क्या हो? कौन सी बातें सुनने में? कि लड़ाई झगड़े वाली। वैसे तो मैंने तो देखा लड़ाई झगड़े वाली बातें ज्यादा सुनने वाले लोग, उनके कान होते हैं कि चर्च में ही बैठे कौन मेरी चुगली कर रहा है, किसने मेरे खिलाफ बात की है। तो कान सुनने से नहीं भरता, मैं आपको बता दूं। कान सुनने से अगर आप इसे बंद कर ले तो वो अच्छा है। ऐसी बातें जो नेगेटिव होती हैं, ऐसी बातें जो आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी को यानी वहां पर ब्रेक करने के लिए होती हैं, रोकने के लिए होती हैं। इसी तरह मेरे साथ निकालिए फिर दूसरा सैमुएल 22 बाब और उसकी तीसरी आयत। ये जब इंसान पर, जैसे पीछे मैंने बताया खरूज की किताब के अंदर के तशद्दुद होता है, तो यहाँ पर सैमुएल नबी के वसीला से भी खुदा कलाम कर रहा है कि हमें निजात की तरफ खुदा लेकर जाता है, और हम शायद निजात की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात तो मिल गई है, पर फिर भी हम बहुत सारे ऐसे कामों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातों में फंसे हुए हैं कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे। खुदा का कलाम हमें स्लोली जो है वो पाक और साफ करता है, एकदम से नहीं होता। खुदा का प्लान है हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर। सभी कलाम सुनाने वाले हैं, लेकिन स्टाइल फर्क है। किसी के पास बरकत ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन देने वाला कौन है? खुदा। हालेलुया। आज निकाल लिया वाला, अगर निकालिए तो पढ़ दीजिए। खुदा मेरी चट्टान है,
मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। तू ही मुझे तशद्दुद से, जुल्म से बचाता है। सो ये 2-4 हवाले हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक हवाला कोड करूंगा और फिर खुदा के कलाम को वाइंड अप करेंगे। ज़बूर 57 उसकी 3री आयत, फिर ज़बूर 106 उसकी 47 आयत, ज़बूर 6 उसकी 4 आयत, और हिजकिय्याल 36 बाब और उसकी 29 आयत। अगर नोट करने वाले हैं तो ठीक है, वैसे मैंने आपको ये आयात बता दी। सो हम चलेंगे नए अहदनामा के अंदर, लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। यहाँ पर एक शख्सियत है जिसे मैंने लिया है, जिस कहानी को आप उससे बाखूबी वाकिफ हैं। लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से। ये शख्सियत ज़कई है। हालेलुया। ज़कई बच्चों छोटे कद का था। तो कहाँ पर ये चढ़ा हुआ था हम देखते हैं। वो यरू में से दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सका। हम सब भी यीशु को देखना चाहते हैं। किसी ने यीशु को देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन उस वक्त फिजिकली तौर पर वो लोग कितने खुशकिस्मत थे कि यीशु उनके दरमियान थे। हालेलुया। यीशु आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी हौसला अफजाई के लिए कलाम के अंदर लिखा है, तोमा से यीशु ने कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो ज्यादा है जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। ये हमारी इंकरेजमेंट के लिए है कि हम यहाँ पर दिलेर हो जाते हैं और खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कि उसका कद क्या था? छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ। ये कहानी से आप वाकिफ है, लेकिन मैं आपको पढ़कर ये बताना चाहता था कि आप देखें कि जो उसे देखने वाला है उसकी हालत देखें, और जिसने उसे पहले से ही देख लिया है उसकी हालत देखें। इतनी भीड़ के सबब से खुदा की नजर, यीशु मसीह की नजर जिस पर गई है, ज़कई पर, और वो कहाँ पर चढ़ा हुआ है? दरख्त पर। आप में से भी खुदा इसी तरह, आप अगर पीछे बैठे या आगे बैठे, उसकी निगाह आप पर पड़ी हुई है, और वो आपसे कहेगा, ऐ ज़कई नीचे उतर, मुझे आज ही तेरे घर जाना है और तेरे साथ बैठकर खाना खाना है। और वहां पर एक पैगाम उसको मिलता है। क्या पैगाम मिलता है? कि आज इस घर के अंदर नजात आई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस घर के अंदर क्या आई है? नजात आई है। सो अजीजों, मैं यहाँ पर बीज बोने वाला हूँ, पादी साहब भी बीज बोने वाला है। बढ़ाने वाला कौन है? खुदा है। पलूस ने पौधा लगाया है और अप्लूस ने पानी दिया है, और बढ़ाया किसने है? खुदा ने। हम इसी तरह, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दीगर चर्च के अंदर हम जाते हैं, पादी साहब भी जाते हैं, और हमें यही नजर आता है कि बहुत कम जगह पर जो है लोग सिंसियर हैं, वरना
آپ کو پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ کب کچھ نہ دیکھیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ یہ سب کچھ منظر اگر دیکھ رہے ہیں تو جو آپ کی آنکھوں کو بنانے والا ہے اگر وہ آپ کی آنکھوں کے اندر ہے تو آپ کو کوئی نیگیٹو چیز نیگیٹو نہیں لگے، آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے کہا کہ اس قوم سے کہ تم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، جس کو دیکھنا چاہیے اسے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ تو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کس نے ظاہر کیا؟ اس نے جو آج ہماری زندگی میں نجات کا کام کر رہا ہے، جس نے ہمارے لیے صلیب اٹھا لیا۔ صلیب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صلیب ایک لعنتی علامت تھی جس پر وہ لوگ چلائے جاتے تھے جو لعنت کا کام کرتے تھے، جو برے کام کرتے تھے، جو اپنے معاشرے کے اندر اچھے نہیں جانے جاتے تھے، اور جس کے اندر گناہ نہیں تھا اس نے وہ صلیب اٹھا لی۔ کن کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ہماری زندگی کے اندر خدا نے سلویشن کا کام کیا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ آگے ایک ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں ہر شخص منتظر ہے۔ وہ 4 نیکیاں کر لیں، وہ ساری زندگی کلام سنا لیں، وہ پرستش کر لیں، وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن دلوں اور گردوں کا جاننے والا خدا ہے۔ ہر ایک شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر کیا کیا، اور خدا اگر آپ کو آج موقع دے رہا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ پچھلی عمر میں جا کر میں خدا سے کہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے ہماری عمر کی میعاد کے اندر ایسا کوئی کام نہیں رکھا۔ اگر آپ لڑکپن سے خدا کو پسند کریں گے تو یہ خدا کو زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ بیٹر ہے خدا کی نظر کے اندر کہ آپ جوانی کے اندر جب اپنے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے حقیقت میں بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ اس کا رحم جو ہے ہمیشہ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے درمیان خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں سب کھڑے ہو جائیں اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔